यस, तो नेक्स्ट लिख दो इलास्टिसिटी कंटिन्यूड. यस, राइट डाउन इलास्टिसिटी कंटिन्यूड. इलास्टिसिटी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कुछ डेरिवेशन किए थे, थोड़ा बाकी था. ओके, राइट डाउन इलास्टिसिटी कंटिन्यूड. यस, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ. राइट डाउन द टॉपिक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इन इलास्टिसिटी. ये ग्राफ हम लोग ने पहले बनाया था, बट इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है. राइट डाउन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ इन इलास्टिसिटी. लिखा ये. How was the nature of stress versus strain graph? किसी को याद है? What was the nature of stress versus strain graph? Yes, anyone who can remember what was the nature of stress versus strain graph? It was a straight line. याद है? Yes, it was a straight line. तो हम लोग ने देखा x axis और y axis. So suppose on the x-axis I take stress. What is stress? Force upon area. Okay. And suppose on the y-axis I take strain. Change in length upon original length. Okay. तो ये मैंने x-axis और y-axis पे लिया. अब सोचो अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग. Suppose we have an experiment in which we have a, let us say, rubber band. Suppose this is a rubber band. Some elastic material. Yes, wire made up of elastic material. It can be what? Steel. It can be rubber. It can be anything. Okay, some elastic material. Okay, and suppose I have a load. यहाँ पे मैंने क्या किया? Load. Load मतलब क्या? Force. So we have load, and load means what? Force. Force. So there will be a force on this wire. Suppose the force on this wire is what? mg. Okay, now due to this force there will be extension in the wire. The wire will get extended. Yes or no? Yes, sir. Yes. So there will be some extension. Let us say from the initial position it will have some extension like delta. Okay. So this is the extension of the wire, which is delta. Okay, and this was the original length of the wire, which is L0. This is the new length of the wire. Yes, what is L0? Original length of the wire. Initial length of the wire. What is L? New length of the wire. The last time. Final length of wire. Yes. And we have a load which we have kept. So this is our load which will still act here. Okay. So this is the setup which we have. Okay. So due to this load, there will be an extension in the wire and hence there will be a strain. Due to this force, there will be extension in the wire. So we can say due to this force per unit area, which is nothing but the stress, we will have delta upon L0, which is the strain. Okay. So we can say as force increases, as F value increases, strain increases, or we can say change in length increases. Yes or no? Yes, sir. जितना ज्यादा वजन लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन आएगा. अगर मैंने 1 किलो वजन लगाया तो मान लो 1 मिलीमीटर एक्सटेंशन आया. तो मान लो 2 किलो वजन लगाया, 2 किलो, तो कितना एक्सटेंशन आएगा? 2 millimeters. Yes or no? 1 Yes, kilo पे sir. 1 millimeter, 2 kilo पे 2 millimeter. So that is what I'll draw here. Force is 1, let us say kilo, 1 kilo weight. Okay. So 1 millimeter is the extension. एक example लिया. 1 kilo weight force, we have extension of 1 millimeter. So for 2 kilo weight force, what will we have? 2 millimeter. 2 millimeters. So it will be a straight line. Yes, 3 kilo weight force, 3 millimeter. So that is what we will have. We will have a straight line. Correct?
If I join Yes, 1 kiloweight, 1 millimeter, 2 kiloweight, 2 millimeter, 3 kiloweight, 3 millimeter, 4 kiloweight, 4 millimeter. So this is what we'll have. This is the nature of the graph. Okay. And the substance which has this nature is called as elastic substance. ऐसे substance को हम लोग क्या बोलेंगे? Elastic substance. What is the meaning of elastic substance? समझ में आया? More the force, Yes, more the sir. extension. What is the meaning of elastic substance? More the force, more the extension. So force is directly proportional to extension. Okay. अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि force is directly proportional to extension तो है, लेकिन एक particular point आएगा, उसके बाद force is no longer proportional to what? Extension. Okay, there is some highest point, there is some maximum value of force up to which the graph is straight line. After that the graph is not a straight line. Okay. तो ये हम लोग एक्सटेंशन को डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं. एक्सटेंशन को क्या लिख सकते हैं? एक्स. मोस्ट ऑफ द बुक्स में एक्सटेंशन को वो लोग डेल्टा एल के बदले क्या लिखेंगे? एक्स. ओके. तो वी कैन से force is directly proportional to extension, force is directly proportional to x, and x is what? Extension. Extension. So we can say force is some constant into x. Yes or no? Yes, sir. Yes. और इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? Hooke's law. Okay. This law is called as Hooke's law. Hooke's law. Okay. So that is what we'll say. Hooke's law. Write this, Hooke's law. Yes, up to a certain limit. Force is directly proportional to extension. This is called as Hooke's law. This is called as Hooke's law. And the equation will be F directly proportional to X, which gives F is equal to Kx. Yes, this is the numerical formula for Hooke's law. Okay. सब kx लिखा है आपने सेकंड वाला? क्या क्या? सेकंड वाला kx लिखा है ना? यस, kx लिखा है. यस. अब फोर्स के बदले हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे? स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. है ना? है ना? तो स्ट्रेस एंड फोर्स आर डायरेक्टली. Yes, sir. एंड एक्सटेंशन इज रिलेटेड टू द स्ट्रेन. है ना? Extension is related to Yes, the sir. strain. So we can say stress is directly proportional to strain. ये भी बराबर है. Yes or no? तो इसीलिए हम लोग stress Yes, is sir. directly proportional to strain है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? Ratio of stress upon strain is constant. Ratio of stress upon strain is constant. And we call this constant by which name? Modulus of elasticity. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Modulus of elasticity. Clear? Yes, sir. Yes, ये लिख दिया. Yes, sir. And up to a certain limit. इस certain limit का नाम क्या दिया है? Certain limit का नाम क्या दिया है? Elastic limit. हम लोग क्या बोलते हैं? Elastic limit. जैसे ये O है, ये मान लो P है, तो OP क्या है? Elastic limit. Clear है? This is the exact statement Yes, sir. of Hooke's law. Up to elastic limit, stress is directly proportional to strain, and this ratio is called as modulus of elasticity. Okay? Yes. Clear है? So what is elastic limit? Yes, sir. Elastic limit is the Yes, it is the limit maximum value after which of stress up to which stress is directly proportional to strain.
मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होगा? विल स्ट्रेस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? अगेन नो। No, sir. यस, तो लिख दो ये, ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और मैंने पहले भी बताया था, ये वापस एक बार बता देता है। अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, एक ग्राफ में मैंने यहाँ पे स्ट्रेस लिया है, जो भी किया था अभी अभी मैंने, और यहाँ पे स्ट्रेन लिया है, तो अप टू इलास्टिक लिमिट हाउ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। Line. दिस इज अप टू इलास्टिक लिमिट, ओ से पी, लेट अस से इलास्टिक लिमिट। पी क्या है? इलास्टिक लिमिट। ओके, नाउ if I ask you what is the slope of this graph? 1. Yes, 1. slope of this graph will be what? No, no, 1 नहीं है, ये कुछ भी एंगल हो सकता है ना। Slope of this graph is y upon x. Y पे क्या है? Straight. Straight. This is 1 upon modulus of elasticity, हाँ है ना? Yes, sir. इस ग्राफ में हम लोग क्या बोलेंगे? 1 upon modulus of elasticity। अब मैंने ग्राफ बदल दिया, मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिया? स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या लिया? स्ट्रेन। Straight. Still we will say it is a straight line, yes or no? Up to elastic, Yes, sir. yes, up to P point, which is what? Elastic limit. We will have Elastic stress limit. directly proportional to strain. But यहाँ पे slope क्या आएगा? Stress upon strain. Stress by Stress upon modulus of elastic. इस ग्राफ में slope क्या देगा? Modulus of Stress elasticity। upon strain. Modulus of elasticity. तो समझ में आया मैथमेटिकली ऐसा क्यों है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इस y अपॉन x यहाँ पे डायरेक्टली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रहा है, और यहाँ पे इस ग्राफ में स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस के ग्राफ में y अपॉन x क्या दे रहा है? इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? Yes, sir. इस पे दोनों ग्राफ बना दो, मेक दिस टू ग्राफ्स। हो गया सर। 1 minute, sir. यस, तो कौन सा क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, बना दिया। Sir, 1 minute. हो गया? Sir, done. डन। ओके, यस, तो ये ग्राफ को हम लोग और आगे स्टडी करते हैं। लेट अस फर्दर अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ दिस नेचर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बनाया तो फिर उस केस में स्लोप क्या देगा? Modulus of elasticity. ओके, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। और अगर उल्टा किया, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस दिया, तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 1 upon modulus of यस, elasticity. अब इस ग्राफ को हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं। सो वी कैन से द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ ग्राफ, यस और नो? Yes, यस। sir. Yes, sir. यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मैंने O पॉइंट बोला था, याद है सबको, और इसको P पॉइंट बोला था, और P पॉइंट को नाम क्या दिया था हम लोग ने? Elastic limit. यस। यहाँ तक ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद Straight line. अगर मैं और फोर्स बढ़ाऊं, और क्या बढ़ाऊं?
फोर्स। फोर्स। तो अब ये ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा? टूट जाएगा क्या वायर तुरंत से? नहीं, नहीं सर। ग्राफ आगे कंटिन्यू रहेगा, दिस ग्राफ विल कंटिन्यू फर्दर। लेकिन अभी क्या होगा, स्ट्रेस विल नो लॉन्गर बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, अब ये मान लो हम लोग ने थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? है ना? नहीं सर। ये देखो, थोड़ा सा मैंने फोर्स बढ़ाया, वाई एक्सिस पे फोर्स है ना, यहाँ और यहाँ पॉइंट पे फोर्स का डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना? लेकिन एक्सटेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आया कि नहीं? एक्सटेंशन में, हाँ सर। एक्सटेंशन बहुत बड़ा डिफरेंस आया कि नहीं? है ना? यस Yes, सर। ये फॉर स्मॉल स्ट्रेस वी विल हैव अ बिग स्ट्रेन, करेक्ट है कि नहीं? और ऐसा ही हम लोग देखते हैं, जैसे प्लास्टिक का थैली है, उसमें मान लो 2 किलो हम लोग ने कांदा भर दिया, समझाइए। अब उसके बाद हम लोग ने मान लो कांदा नहीं भरा, मान लो सिर्फ बिस्किट का पैकेट डाला, तो भी वो थैली बहुत ज्यादा नीचे आएगा अगर उसका इलास्टिक लिमिट रीच हुआ है तो, है ना? फटने के कगार पे आ जाएगा। यस और नो? यस सर। यस। फिर ये थोड़ा सा फ्लोर के लिए बहुत एक्सटेंशन आएगा, फिर ऐसा नीचे जाके ऊपर आएगा। ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ ऐसा ऊपर ऐसा जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फट जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रैक्चर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है? यस सर। और इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रीजन को, ये जो रीजन आया हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। ये जो रीजन है, इलास्टिक लिमिट जब रीच कर गया उसके बाद का जो रीजन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। इस रीजन में अब इलास्टिक नहीं है, अब कैसा है वो? प्लास्टिक। क्योंकि इलास्टिक कब बोलते हैं हम लोग उसको? व्हेन डू वी कॉल अ सब्सटेंस इलास्टिक? until this graph is what? straight line. yes, अब स्ट्रेट लाइन का आपका फायदा क्या है? जैसे देखो, एक थैली है, उसमें 1 kg ऑनियन डाला, ओके, तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आया। 2 kg ऑनियन डाला तो 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आया। 3 kg ऑनियन डाला मान लो तो 3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आया। अब इलास्टिक लिमिट आ गया मान लो, अब मैंने एक ऑनियन भी डाला, एक ऑनियन, तो 0.5 सेंटीमीटर आ गया मान लो। समझ रहे हैं? ये वाला रीजन आ गया कि नहीं? है ना? है ना? बिग एक्सटेंशन फॉर स्मॉल लोड, है ना? फिर और एक ऑनियन डाला तो मान लो कितना आ गया? यस, कुछ अलग हो गया, 0.25 सेंटीमीटर। नीचे ऊपर जा सकता है कि नहीं? है ना? और फिर 1 ऑनियन और डाला तो फ्रैक्चर हो गया, मतलब थैली फट गया। तो ये पॉइंट आ गया कि नहीं? ये सॉरी। तो इस रीजन में हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक। और इस रीजन में क्या बोलेंगे? प्लास्टिक। ओके, अब और एक एग्जांपल ले लो। अगर मैंने 1 kg ऑनियन डाला तो कितना एक्सटेंशन आया था उस थैली में? 1 सेंटीमीटर। अब मैंने वापस 1 किलो ऑनियन निकाल दिया तो एक्सटेंशन कितना बचेगा? 0। समझ रहा है ना? निकाल दिया तो फिर से रीगेन करेगा कि नहीं? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज रीगेन करेगा कि नहीं? है ना? हाँ। तो जो शेप एंड साइज रीगेन करे अपॉन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक सब्सटेंस। तो ये सबको समझ में आ गया? 100% रीगेन करेगा। क्या 100% रीगेन नहीं करेगा, थोड़ा तो वेरिएशन? नहीं 100% रीगेन करेगा। फ्रॉम O to P 100% रीगेन करेगा। समझ रहे हैं? यस, ठीक है। यस, अब ये देखो, ये वाला लो वाला पॉइंट है और ये अप वाला पॉइंट है, तो लो वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? लोअर यील्ड पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? लोअर यील्ड पॉइंट। और मान लो ये क्या है? ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट है, पी पॉइंट के बाद जो पॉइंट है, समझाइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। इसको यील्ड पॉइंट बोलेंगे। मतलब जब इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। क्लियर है? यस सर। यस। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल क्या है हमारे पास? अगर मान लो मैंने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर लिया, इलास्टिक लिमिट क्या कर लिया? क्रॉस। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे जहां मेरा इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया कि नहीं? है ना? यस। अब मान लो वो क्रॉस होने के बाद पूरा वजन अंदर से निकाल दो, जो लोड है वो निकाल दो, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं? क्यू पॉइंट पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा कि नहीं? मान लो यहाँ पे ए पॉइंट लिया, यहाँ पे बी पॉइंट लिया, यहाँ पे सी पॉइंट लिया, ए बी सी पे अगर मैंने लोड हटा दिया तो क्या एक्सटेंशन आएगा? परमानेंट एक्सटेंशन आएगा? नो सर।
क्योंकि वहां पे इलास्टिक है, लेकिन क्यू पॉइंट पे तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया है ना। तो क्यू पॉइंट पे अगर Yes, मैंने sir. उसमें से लोड निकाल भी दिया तो भी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं, है ना। यस सर। Yes. Yes, sir. तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो समझे। यस, तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है हमारा। इस ग्राफ को मैंने डॉटेड में दिखा दिया। So there is a permanent deformation even after removal of external force. Okay? Once the elastic limit has been crossed. Okay? So this distance, मान लो इसको मैंने OA बोला, OA दिख रहा है ना। यस सर। यस, तो इसको हम लोग ने स्पेशल नाम दिया, इट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना, वो Yes. सेट हो गया मटेरियल, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो OA को हम लोग क्या नाम देते हैं, परमानेंट सेट। तो इज दिस ग्राफ फुली अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. Yes, this Understood. graph is for a elastic material which is subjected to some varying load. लोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं Very. धीरे धीरे, समझाइए। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, और ये लेबोरेटरी में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, समझाइए। 12th स्टैंडर्ड में ऐसा लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें क्या होगा हमारे पास, we will have a 1 kg material first, then we will check the extension, then we will take 2 kg weight material, then we'll check the extension, 3 kg material, we'll take the extension, and if we remove the 3 kgs, it will again regain the whole shape and size. Okay, Yes sir. it is elastic, but 4 kg पे मान लो क्या हुआ, फिर से रिगेन शेप किया, शेप एंड साइज, 4 kg लगाया, एक्सटेंशन आया मान लो 4 सेंटीमीटर या 4 मिलीमीटर, फिर वापस 4 kg हटाने के बाद वापस वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। फिर मान लो 5 kg रखा, 5 kg सब्सटेंस रखने पे क्या हुआ, 5 मिलीमीटर एक्सटेंशन आया, और फिर वापस उसने रिगेन किया शेप एंड साइज। अब हम लोग ने देखा कि इसके बाद रिगेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए 100 ग्राम बढ़ाते गए, तो 5.1 kg। हम लोग ने देखा कि 5.1 मिलीमीटर आया, समझाइए, या 5.2 मिलीमीटर आया, तो थोड़ा सा प्लास्टिक वाला चीज चालू हो गया कि नहीं अभी, है ना, प्लास्टिक। Yes, sir. क्योंकि मान लो 0.1 मिलीमीटर एक्सटेंशन आना चाहिए था, उसके बदले 0.2 आ रहा है, तो हम लोग को समझ गया अब इलास्टिक लिमिट रीच हो गया, अब वायर खराब हो जाएगा, समझे। तो अब ये परमानेंट सेट निकालेंगे PQ का पैरेलल लाइन से, यहाँ पे OA वाला, तो परमानेंट सेट आ जाएगा। क्लियर है। यस, फिर बाद में और हम लोग ग्राफ को करेंगे जब तक वो टूट न जाए, समझे, पर तोड़ना ओड़ना नहीं है, लैब में हम लोग नहीं तोड़ते, बट जहां पे तोड़े हम लोग थियोरेटिकली, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है सर yes. और P Yes, के बाद जो भी इलास्टिक लिमिट रीच करने के बाद जो भी ग्राफ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक रीजन, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर व्हाट गेनिंग द 100% शेप एंड Elastic. साइज। Yes. क्लियर। यस, तो ये Yes, ग्राफ sir. बन गया। यस, तो इसको लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर इंक्रीजिंग लोड। सर लोड परमानेंट सेट का मीनिंग वापस बताओ ना। परमानेंट सेट नहीं समझा, ये देखो क्यू पॉइंट, अगर मैंने कोई एक पॉइंट लिया, समझे, यस, जहां पे हम लोग को क्या मिला, एक्सटेंशन इलास्टिक लिमिट से ज्यादा मिला, समझ में आ रहा है। यस सर। यस, तो वो एक्सटेंशन लोड हटाने के बाद भी रहेगा कि नहीं, लोड हटाने के बाद भी एक्सटेंशन रहेगा, यस सर रहेगा। तो उसको हम लोग जो एक्सटेंशन है परमानेंट, उसको हम लोग परमानेंट सेट बोलेंगे। यस, तो लिख दो। हो गया। 1 मिनट। Sir, नहीं सर। यस, यहाँ पे उससे पहले एक पॉइंट होता है, उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट भी होता है, मान लो इसको R बोल दो और मान लो इसको S बोल दो, तो R पॉइंट है, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है कि नहीं, है ना। तो R पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, Yes.
ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब यहाँ से अब टूटना तय है उसका, ये R पॉइंट तक आ गया तो टूटना तय है। और ये S पॉइंट जो मैंने बोला है वो क्या है, जिस पॉइंट पे टूट रहा है, समझे, इसको ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, R पॉइंट। देखो R पॉइंट ऊपर है और ब्रेकिंग पॉइंट नीचे है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, R पॉइंट पे ब्रेक होना तय हो गया, वायर टूटने वाला है, तुम्हें समझ गया वायर टूटने वाला है, तो तुमने मान लो अगर थोड़ा सा लोड कम भी कर दिया तो भी उसको बचा नहीं सकते, समझाए, तो थोड़ा सा लोड कम भी कर दिया तो इस वाले स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्लियर है, R पॉइंट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस, अब टूटना तय है, और S पॉइंट इज ब्रेकिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो रहा है, जिस लोड पे वो ब्रेक हो रहा है। और यील्ड पॉइंट क्या है, आफ्टर यील्ड पॉइंट क्या होगा, प्लास्टिक फ्लो, है ना, यस सर। प्लास्टिक फ्लो स्ट्रेस या प्लास्टिक रीजन स्ट्रेस, उसको प्लास्टिक फ्लो बोलते हैं। यील्ड पॉइंट के बाद क्या होगा, यील्ड पॉइंट P है, उसके बाद क्या होगा, प्लास्टिक फ्लो रीजन। ये लिख दिया। यस सर। इस पॉइजन्स रेशियो करके, पॉइजन्स रेशियो लिखा था मैंने लास्ट लेक्चर में, पॉइजन्स रेशियो है ना, नो सर। नहीं लिखा है तो लिखेंगे, तो पहले ये पूरा लिख दो, सब कुछ जो जो मैंने किया है, सब डायग्राम, ग्राफ, ऑल द पॉइंट्स एंड देयर नेम्स लिख दो। सर यस, तो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं पॉइजन्स रेशियो। इस मेरे ख्याल से तो मैंने लिखा था शायद, पर नहीं लिखा तो अभी लिख दो। इसका सिंबल नॉर्मली हम लोग सिग्मा यूज करते हैं। इस पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन क्या है, इस पहले तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। यस, जब हम लोग इसको खींचेंगे तो ऐसा बड़ा हो जाएगा कि नहीं लेंथ, है ना, यस सर। लेकिन इसका एरिया कम हो जाएगा, है ना, यस सर। अगर इसका डायमीटर D है यहाँ पे, तो इसका डायमीटर बाद या तो D नॉट बोल दो, क्या बोल दो, D नॉट, और ओरिजिन लेंथ क्या बोल दो, L नॉट। एल नॉट। तो बाद में लेंथ बढ़ गया, ये सुनो, यस सर। यस सर। डायमीटर कम हो गया, है ना, यस सर। तो डायमीटर डिक्रीजेस। इसमें कोई डाउट है किसी को, एज वी एलोंगेट अ वायर, वायर को खींचा तो वायर पतला हो जाता है, इसमें किसी को डाउट है, नो सर। इसको हम लोग के पास ये जो रेशियो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, द रेशियो व्हिच रिलेट्स व्हाट, चेंज इन डायमीटर, यस, चेंज इन डायमीटर एंड व्हाट, चेंज इन लेंथ। change in length is called as what, Poisson's ratio। पॉइजन। इससे समझ गया, ये रेशियो, पॉइजन्स रेशियो कब यूज करेंगे, नॉर्मली नहीं यूज करेंगे, जब हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन ज्यादा होगा, डायमीटर में चेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझाइए। इसका रेशियो क्या आता है, इसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडिनल से नाम समझ रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब क्या, लेंथ, और लैटरल क्या होगा, चेंज इन डायमीटर वाला, है ना, यस सर। यस। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना है
फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यस और नो? और चेंज इन डायमीटर Yes, क्या sir. है? फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल D. डायमीटर, उल्टा लिख दिया। Sir, D minus D नोट आएगा ना? यस, तो समझाइए। सिग्मा क्या आएगा? Yes, sir. लैटरल स्ट्रेन, मतलब क्या? डेल्टा डी अपॉन डी नॉट अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, Delta L upon L नोट। क्लियर है? सर ये नेगेटिव होगा ना रे? कैसे नेगेटिव आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है। यस, तो लिख दो ये पॉइजन्स रेशियो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। और नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा समझाइए? फाइनल डायमीटर छोटा है। यस सर। यस, ये कैसा है? स्मॉल। ये कैसा है? बिग। तो इसीलिए क्या आएगा? स्मॉल माइनस बिग क्या होता है? नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? डिक्रीज इन डायमीटर। यस, lateral strain and longitudinal strain. Are in opposite sense. क्यों ऑपोजिट सेंस? क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है ना, और डायमीटर घट रहा है। ये दोनों ऑपोजिट सेंस में। क्लियर है? यस सर। क्लियर। और ये पॉइजन रेशियो कब डिफाइन होगा? विद इन इलास्टिक लिमिट। ये कब डिफाइन होगा? विद इन इलास्टिक लिमिट। जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया तो हम लोग नहीं बोलते, विद इन इलास्टिक लिमिट वी से Poisson's ratio sigma is lateral strain upon longitudinal strain. क्लियर है? यस सर। और देखो ये भी न्यूमरेटर में भी स्ट्रेन है, डिनोमिनेटर में भी स्ट्रेन है, तो ये क्या आएगा? डायमेंशनलेस, यूनिटलेस आएगा। ये कैसा आएगा? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। डायमेंशन भी नहीं होगा, यूनिट भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस, तो लिख दो ये पूरा लिख के हो गया तो मेरे को बोल दो। हो गया? 1 मिनट सर। कोई डाउट आया इसमें? नो सर, नो डाउट। ये सिंपल है ये। यस सर। फिर नेक्स्ट चालू करूँ अभी? 1 मिनट सर, थोड़ा बाकी है। डेल्टा डी एकदम नेग्लिजिबल होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। क्या? डेल्टा डी जब नेग्लिजिबल होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। हाँ, डेल्टा डी अगर नेग्लिजिबल है तो फिर हम लोग ये पॉइजन रेशियो नहीं लेंगे। समझाएगा? मोस्टली हम लोग पॉइजन रेशियो नहीं कंसीडर करते अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला हो। समझाइए? क्वेश्चन में बोला हो तभी हम लोग पॉइजन रेशियो का बात करें। यस, सब ने लिख दिया? यस सर। यस, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक एक्सप्रेशन हम लोग ने डिराइव किया था, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? स्ट्रेन एनर्जी इन वायर हाफ इनटू क्या बोला था? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। यस और नो? याद है सबको? इसी को हम लोग क्या लिखते थे? हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। बराबर है कि नहीं? यस है ना? सर। यस सर। फिर इसी को हम लोग और एक बार वॉल्यूम से डिवाइड किया था, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा, है ना? यस सर। तो दिस इज हाफ
into stress into into strain. just write this. लिख दिया. Yes, these are the three formulas. ये हम लोग डिराइव करेंगे अभी. लिख दिया. यस बोलो जल्दी. लिख के हो गया. नहीं सर. No, sir. Sir, done. Done. Okay. नहीं सर, 1 मिनट. ओके अब तो हो गया. यस सर. इसको देखो, ये तो हम लोग अभी डिराइव करेंगे, पर इसके अलावा और कुछ फॉर्मूला है वो भी हम लोग को याद रखना है. तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस. अब बल्क मॉडुलस को कभी कभी हम लोग k भी लिखते थे, हाँ है ना. Yes, sir. यस तो ऐसे लिख सकते हैं. और सिग्मा क्या है अभी समझा तुम्हें, पॉइजन्स रेशियो जो अभी पढ़ा हम लोग ने, हाँ है ना. फिर फिफ्थ फॉर्मूला Yes, sir, समझा. यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. याद है ऐसा सिंबल लिखा है Yes, sir. फिर और एक फॉर्मूला जिस यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, तो सिक्स फॉर्मूला यहाँ लिख दो. 9 टाइम्स बल्क मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो ये फॉर्मूलाज हम लोग को याद करने, ये 3 फॉर्मूला. अब चौथा चाहिए तो हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं. समझे, विच इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा बल्क मॉडुलस एंड ईटा. अगर चाहिए तो डिराइव कर सकते हैं. कैसे? सिग्मा बल्क मॉडुलस और ईटा में कैसे रिलेशन आएगा हम लोग को, ये दोनों को इक्वेट करके, हाँ है ना. आरएचएस दोनों का इक्वेट कर दिया, इसका आरएचएस और इसका आरएचएस, तो इसमें रिलेशन आ जाएगा भी नहीं. तो ये 3 ही रिलेशन हम लोग को याद रखना है, बाकी कोई भी आ जाएगा हम लोग. क्लियर है? ये 3 रिलेशन याद Yes, sir. मॉडुलस इज 3 टाइम्स बीटा into 1 minus sigma. Young's modulus is 2 times eta into 1 plus sigma. और उसके बाद Young's modulus is 9b plus eta upon 3b plus eta. Y क्या है यहाँ पे? Young's modulus. Y तो पता है, Y तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है. Y क्या है जल्दी बोलो. Young's modulus. B क्या है? Bulk modulus. और तीसरा eta क्या है? Modulus of rigidity or shear modulus. Modulus of rigidity और shear modulus. क्लियर है? और सिग्मा तो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा. Yes, sir. What is sigma? Poisson's ratio. Poisson's ratio. सिग्मा पॉइसन्स रेशियो अभी पढ़ा कि नहीं अभी, हाँ है ना. Yes, sir. yes, तो ये भी फॉर्मूला लिख दो. राइट दिस फॉर्मूलास. फिर हम लोग डेरिवेशन चालू करते हैं. और देखो इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं, बट इसका डेरिवेशन हम लोग का सिलेबस में नहीं है, इसके लिए स्किप कर रहा है. पर देखो अगर मान लो हम लोग को याद रखने का ट्रिक बता रहा है, एक छोटा सा ट्रिक बता रहा है, तो याद कैसे रखने का. तो याद रखने के लिए देखो यहाँ पे 3 है, बड़ा नंबर है कि नहीं, हाँ है ना, है ना. Yes, sir. तो बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे. और यहाँ पे 2 नंबर है, कैसा है, छोटा है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे. क्लियर है? तो देखो मैंने कैसे याद किया, मैं बता रहा हूँ. तो यंग्स मॉडुलस पहले छोटा नंबर लिया 2, और अगर छोटा नंबर है दूसरा 3 लेंगे, हाँ है ना. तो छोटे में क्या होगा, छोटे में क्या होगा, माइनस. और बड़े में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. क्लियर है? Minus.
यस, तो ये हम लोग को आ Yes, sir. ये और ये कैसे समझने का, समझ में आए नंबर्स। अब देखो बी कैसे आएगा। Yes, sir. ओके, तो बी कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग ने सब्ट्रैक्शन किया है कि नहीं, बी है ना, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है, तो हम लोग ने क्या लिया, बी अल्फाबेट लिया। ये नंबर बड़ा है तो हम लोग ने अल्फाबेट भी कैसा लिया, छोटा रैंक का, मतलब बी सेकंड अल्फाबेट है ना, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद अगर मैंने मान लो एडिशन किया, यहाँ पे एडिशन किया है, और ये छोटा नंबर है, ये कैसा है, छोटा नंबर, ठीक है। Number. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा अल्फाबेट लेंगे, छोटे नंबर में क्या आएगा, बड़ा अल्फाबेट। छोटा। जैसे एडिशन किया यहाँ पे हम लोग ने, तो बड़ा अल्फाबेट कौन है, एन जैसा, तो ईटा जैसा, तो इसलिए हम लोग क्या है, छोटा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा अल्फाबेट है ना। Yes, sir. Yes, छोटा sir. नंबर बड़ा अल्फाबेट और प्लस साइन, बड़ा नंबर छोटा अल्फाबेट, छोटा alphabet. समझाए। Yes, sir. स्टार्टिंग में सबको छोटा मिला किसी को, तो बाद में बड़ा मिलेगा, और स्टार्टिंग में किसी को बड़ा मिल गया तो बाद में दोनों छोटा मिलेगा। क्लियर है, Yes, sir. कैसे याद करना है। Yes, sir. और तीसरा वाला तो याद करना एकदम आसान ही है, लास्ट में तो कॉमन फैक्टर है ना, एक बार 9 और एक बार 3 है ना। Yes, sir. तो देखो लास्ट वाला ये बी था, तो ये बी कंटिन्यूड रहेगा, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और बी और ईटा और ईटा, जैसे ये बी था और ईटा था, है ना। तो सुनो, अब देखो Yes, sir. यहाँ पे हम लोग ने 3 वाला अभी अभी निकाला कि नहीं, 3 वाला, ओके, ये 3 वाला अभी अभी लिखा कि नहीं, ये समझाइए। तो 3 के बाद अगला बड़ा नंबर लेने का, क्या लेने का, बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या आएगा, 9, 9. और लास्ट में डिनोमिनेटर में छोटा ले लेने का, ऐसे। तो ये ऑर्डर में याद रखने का, 1 2 3, तो तुम्हें इजीली याद रखना, समझाइए। Yes, Yes, sir. sir. इसको देखो, अभी मेरे को बता सकता है कोई, y क्या आएगा, पहले छोटा नंबर ले लो, छोटा नंबर है तो फिर कौन सा, ये अल्फाबेट बड़ा आएगा, है। छोटा बड़ा है। alphabet. और ये कैसे आएगा, प्लस, Plus. और अभी मैंने बड़ा नंबर लिया तो अल्फाबेट छोटा छोटा है, और और ये minus. भी छोटा है। अब उसके बाद ये 3 आ गया तो बढ़ना चाहिए, तो 9, Yes, sir. 9. 9 क्या, बी, क्योंकि 9 बी है ना, हाँ. प्लस ये जो बच गया ऊपर थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा। ये रिलेशन याद करने में आसान है कि नहीं, Yes, sir. इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, समझ में आया, इसका डेरिवेशन Yes, sir. नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बट इज इट ऑल अंडरस्टूड द Yes, sir. वे इन व्हिच विल रिमेंबर दिस रिलेशंस। यस, तो बताओ मेरे को एक बार और, वंस मोर, बस एक बार और बता दो, जल्दी बताओ फर्स्ट रिलेशन, अगर तुम्हें याद हो गया तो। फर्स्ट रिलेशन बोलो। So y is equal to 2 and 1 plus sigma. अब छोटा नंबर से चालू करेंगे, फिर इसके बाद बड़ा होगा, फिर इसके बाद और बड़ा होगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये 2 छोटा n है, into 1 plus. तो छोटा है, अगला तो कैसा होगा, बड़ा, तो बड़ा मतलब यहाँ पे ईटा आएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे क्या है, बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर के बाद यहाँ पे क्या आएगा, छोटा अल्फाबेट, और ये भी छोटा, 1 minus और यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 9, और बाद 9 में d plus 10. ये रेशियो है लास्ट, 9 के बाद नीचे क्या आएगा। 3 plus n. तो समझ में आ गया सबको कैसे याद रखेंगे। Yes, sir. यस, कोई भी डाउट है तो बता दो, सिंपल है, देखो लॉजिक से याद कर लो। No, sir, no doubt. यस, हालांकि ये आने का क्वेश्चन आने का चांस नेग्लिजिबल है, पर फिर भी एक बार मैंने तुम्हें दिखा दिया, याद हो गया तो अच्छा है, नहीं याद हुआ तो भी चलेगा। इस फॉर्मूला नंबर, अच्छा फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो हो गया ना अभी, इस फॉर्मूला को डिराइव कर लिया हम लोग। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये डेरिवेशन बाकी है इसका, तो लिखो डेरिवेशन। सर एग्जाम में इसका डेरिवेशन आएगा? नहीं आएगा, किसका, इसका, इसका, ये स्ट्रेन का? हाँ वो ये स्ट्रेन का आ सकता है, इसलिए तो करा रहा है, इसको हमारे सिलेबस में है। यस, तो डेरिवेशन ऑफ व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी। यस, ये आएगा इसीलिए तो लिखा है, जो आएगा वो डेफिनेटली लिखवाएगा ही। ये जो एक्सपेक्टेड नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉर्मल एग्जाम में, वो नहीं लिखा है। हालांकि इसका भी डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, ये जो है
इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन में क्या करना होता है, हम लोग को एक क्यूब लेना होता है। तो वी हैव टू टेक अ क्यूब, समझाइए। एक क्यूब लेके इसको हम लोग क्या करते हैं, वी विल कैलकुलेट व्हाट द एक्सटेंशन, समझाइए। एक क्यूब में क्या होगा, हम लोग फोर्स लगाएंगे, विल अप्लाई फोर्स फ्रॉम वेरियस साइड्स ऑफ द क्यूब। एक इमेजिन करेंगे कि हर साइड से क्या लग रहा है, फोर्स। इसमें हम लोग क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एक्सटेंशन इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस एफ अपॉन वाई, ऐसा। एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सटेंशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सटेंशन अलोंग जेड एक्सिस निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टोटल एक्सटेंशन निकालेंगे। फिर वैसा करके हम लोग निकालते हैं शेयर मॉडुलस डिफाइन करके। ओके, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ याद करने का तरीका बताया। क्लियर? यस सर। यस। तो देखो, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, विल कंसीडर अ वायर। ओके, वायर का लेंथ कितना है, मान लो एल नॉट। वायर का लेंथ कितना लेते हैं हम लोग, एल नॉट। अब उसके बाद मान लो इसको हम लोग ने क्या किया, एक्सटेंड किया, तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं, ऐसे बनाने का अच्छा रहेगा। यस नॉट लेंथ, अभी पतला वायर हो गया, थोड़ा पतला हो गया, और लेंथ कितना हो गया, एल, बराबर है कि नहीं, है ना? यस, बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलो। इसमें ज्यादा पतला हम लोग नहीं मानेंगे, थोड़ा ही पतला हुआ है तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे कितना पतला है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स लग रहा है, यस और नो, नॉर्मल फोर्स, हाँ है ना। यस और ये ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, फाइनल लेंथ एल है। क्लियर? अब यंग्स मॉडुलस क्या आएगा यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस बोलो, यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन क्या था? करेक्ट है कि नहीं, हाँ है ना। यस सर। अब एक्सटेंशन को मैंने क्या बोला था, एक्स बोला था, याद है तुम्हें, है ना। यस सर। हम लोग बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इज वाई एक्स अपॉन एल नॉट, ये बराबर है कि नहीं, है ना। यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन एल नॉट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? यस सर। डाउट है इसमें किसी को? नहीं। नो सर, नो डाउट। यस। अब वर्क क्या होगा, अब वर्क में क्यों निकाल रहा है, तो देखो पहले मेरे को फोर्स क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालना है ना। यस सर। एनर्जी निकालना है मतलब वर्क निकालना है, यस और नो, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल। यस सर। यस। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, यस और नो। यस सर। तो फोर्स लगेगा कि नहीं, मुझे फोर्स, फोर्स लगेगा तो ही आंसर आएगा, यस और नो। इसलिए मैंने पहले फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला। यस। लॉजिक समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया? यस सर। मेरे को एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है मतलब क्या करना है, वर्क निकालना है। क्लियर? तो वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स। अब फोर्स का ये वैल्यू डाल दो, ये वाला, तो क्या आएगा, वाई ए एक्स अपॉन एल नॉट इंटू डी एक्स। अब वाई ए अपॉन एल नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स आ गया, तो वाई ए अपॉन एल नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। करेक्ट है कि नहीं, यस सर। यस। अब इसका जो एक्सटेंशन का वैल्यू है, ये कहां से कहां जा रहा है, जीरो से डेल्टा एल, है ना। एक्स का वैल्यू है, एक्सटेंशन का वैल्यू जीरो है मिनिमम, और मैक्सिमम डेल्टा एल माना मैंने, है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, यस सर। वाई ए अपॉन एल नॉट, अब अपर लिमिट रख दो, तो डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट है कि नहीं, है ना। और लोअर लिमिट रखेंगे तो यस जीरो सर। आएगा, जीरो का तो कुछ नहीं होगा, है ना। अब इसको लिख सकते यस हैं सर। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ऐसा करना है कि नहीं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना, है ना। यस सर। तो यह इसको वाई मॉड्यूलस डेल्टा को एल स्ट्रेस अपॉन एल नॉट लिख दिया, ऐसा लिख दिया, वाई डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। इससे फायदा क्या हुआ, वाई डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या होगा, स्ट्रेस होगा। वाई डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस होगा, है ना। यस सर। देखते हैं, रुको, जिसको नहीं समझा देखते हैं। और इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, समझाइए। अब देखो डेल्टा एल तो आ गया, पहले चाहिए तो हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये वाला पहले चाहिए तो ऐसे लिख देते हैं, तो लोड इंटू एक्सटेंशन वाला डिराइव हो गया। तो फोर्स के टर्म्स में लिखते हैं, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, करेक्ट है कि नहीं, इंटू डेल्टा एल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं,
यस सर। देखो ये सेम आ गया कि नहीं, सोचो थोड़ा, y a डेल्टा एल अपॉन एल नॉट और इंटू डेल्टा एल। अब ये अगर अच्छे से देखें रेड कलर से इस एक्सप्रेशन से देखो, ये हाफ इंटू फोर्स हो गया इंटू एक्सटेंशन हो गया। तू कौन सा साड़ी पहन रही है? नेहा का देखा? इस क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी, वर्क डन मतलब क्या, स्ट्रेन एनर्जी, हाँ है ना। तो दिस इज इक्वल टू Yes, हाफ sir. इंटू फोर्स मतलब क्या, लोड इंटू डेल्टा एल मतलब क्या, एक्सटेंशन। क्लियर हो गया ये, हाँ है ना। यस सर, क्लियर। इस तो ये पहले लिख दो, पहले ये लिख दो, फिर हम लोग हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी करते हैं, पहले ये लिख दो। पूरा समझ गया ये इंटीग्रेशन कैसे किया मैंने, हाँ है ना। हाँ सर। यस तो राइट दिस। यस सर, समझा। सर एक डाउट था। यस क्या हो गया, हो गया, सर एक डाउट था, वो बोलो बोलो। आपने जो थर्ड स्टेप लिखा है ना, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई एक्स अपॉन एल नॉट, हाँ, तो उसमें वाई कैसे आया? वाई यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन से आया ना ये, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, सर अभी समझा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और डेल्टा एल को मैंने क्या लिखा है, एक्स। डेल्टा एल को मैंने क्या लिखा है, एक्सटेंशन, ये पहले भी बताया था मैंने, एक्सटेंशन को मैंने क्या लिखा है, डेल्टा एल, उसको एक्स की सिंबल यूज करते। क्लियर। यस सर। जैसे हो गया तो बोल दो मेरे को। हो गया सर। यस वन से सर फिनिश। 1 मिनट। अब इसके बाद हम लोग को कौन सा डिराइव करना है एक्सप्रेशन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो वो भी करेंगे, पहले ये लिख दो। लिख दिया। सर 1 मिनट। तो ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कर लिया, कौन सा, ये वाला। क्लियर है। ये हुक्स लॉ सबको याद है, हुक्स लॉ, अप टू इलास्टिक लिमिट हाँ सर। प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए पता है। यस तो ये लिख दिया। यस सर हो गया। हो गया। यस तो देखो अभी हम लोग ने स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाला, कौन सा फॉर्मूला निकाला, एकदम इजीली निकल गया कि नहीं, हाँ है ना। यस सर। एनर्जी मतलब हमेशा क्या निकालने का, वर्क, और वर्क Work done. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला तो हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, बराबर है कि नहीं। यस सर। अब मेरे को फाइनल स्टेप में क्या प्रूव करना है, फाइनल स्टेप में हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। यस सर। यस सर। तो फाइनल स्टेप के हिसाब से जुगाड़ करेंगे कि नहीं, ये सॉल्व। यस सर। अब देखो स्ट्रेस में हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं, फोर्स अपॉन एरिया, हाँ है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, चलेगा कि नहीं, हाँ है ना। यस सर। यस तो ये स्ट्रेस आ गया कि नहीं, हाँ है ना। मैथमेटिकली ये गलत है या सही है, इज इट सही है सही है। सर। मैथमेटिकली और रॉन्ग, राइट। राइट, ओके। अब यहाँ पे स्ट्रेन चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए, हाँ है ना। यस सर। तो स्ट्रेन लाने के लिए चेंज इन लेंथ है, और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एल नॉट यस, एंड मल्टीप्लाई बाय एल नॉट। बराबर है कि नहीं। यस सर। ए इंटू एल नॉट इज वॉल्यूम। यस
इज इट मैथमेटिकल करेक्ट और रॉन्ग जो मैंने अभी किया? Correct. Correct, sir. तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू फोर्स अपॉन एरिया को मैं क्या लिख सकता है? स्ट्रेस। और डेल्टा एल अपॉन एल नॉट को क्या लिख सकता है? स्ट्रेन। एरिया इंटू लेंथ को क्या लिख सकता है? वॉल्यूम। आ गया कि नहीं हमारा? हाँ है ना? Yes, sir. तो Yes. हाफ इंटू स्ट्रेस, ये अलग कलर से बनाता है तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम बराबर है कितना? Yes, sir. Yes, sir. अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो बताने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम Divide by क्या हो volume जाएगा? कर लेंगे. वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। यस और नो दोनों साइड। Yes. यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड होगा, यहाँ भी वॉल्यूम से डिवाइड होगा। अब जब यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड होगा और यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड होगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू Yes, स्ट्रेन आ sir. जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस, तो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो ये पूरा डेरिवेशन सबको समझ गया? कुछ डाउट आया इसमें? No, Nice, sir. sir. No doubt. Yes, so it is very very easy. All the derivations that we have done. That's all. Yes, sir. Easy. लिख दो ये. Write this. Yes, उसी का कंटिन्यू जो अभी हम लोग ने छोड़ा था वहीं से हम लोग ने कंटिन्यू किया और इजीली डिराइव कर लिया। जो आंसर चाहिए उस हिसाब से हम लोग करते हैं। लिख के हो गया तो मेरे को बोलो, फिर अगला करते हैं। हो गया? Sir, done. यस, सबका हो गया लिख के? किसी का बाकी है? No, sir. हो गया. यस के। अभी देखो कभी कभी हम लोग को ऐसा भी प्रूव करने को आता है कि इसी इक्वेशन को जो अभी निकाला इसको और एक फॉर्म में हम लोग प्रूव करेंगे। okay? जो अभी निकाला हम लोग ने हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो कभी कभी हम लोग को ऐसा प्रूव आता है, कभी कभी ऐसा फॉर्मूला भी यूज होता है। okay? हालांकि वो जरूरत नहीं है, बट फिर भी कभी कभी तुम ऐसा फॉर्मूला किसी किसी बुक में देखोगे okay? तो तुम सोचोगे ये फॉर्मूला तो लिखा है नहीं, ये फॉर्मूला कैसा है? देखो ऐसा है, अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो क्या तुम ये अपने आप प्रूव कर सकते हो? कैन यू प्रूव दिस फॉर्मूला ऑन योर ओन? Yes, sir. कैसे करके बताओ? Sir, we can write strain is equals to stress Yes, upon करके Young's देखो। modulus हाँ, by करके y देखो। is equal. बराबर है। Sir, because the Young's modulus is stress upon strain. यस, So strain is कभी stress ऐसा upon अलग Young's फॉर्मूला modulus. देखे तो ये मत सोचो कि वो लिखा है नहीं, समझाइए। अलग फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो काम का नहीं है और इजीली डिराइव कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए नहीं लिखा है। Yes, sir. समझ में आया? इसको अलग फॉर्मूला अगर कभी दिखे तो ये मत सोचो कि नहीं लिखा है। व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज वी विल डिराइव दोस फॉर्मूलास। क्लियर है? तो कैसे डिराइव करेंगे देखो। Yes, sir. हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ऐसा है कि नहीं? हम लोग को स्ट्रेन को Yes. हटाना है और वॉल्यूम को हटाना है और यंग्स मॉडुलस लाना है। तो कैसे करेंगे? यंग्स मॉडुलस इज व्हाट? स्ट्रेस Stress by स्ट्रेन। ये समझे? तो अभी स्ट्रेन क्या हो जाएगा? stress upon Young's modulus. स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ओके, तो स्ट्रेन को मैं यहाँ वैल्यू रखेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन को क्या लिखेगा? इंटू Stress वॉल्यूम। upon Young's modulus. करेक्ट है कि नहीं? ओके, तो ये क्या हो गया? Yes, sir. स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम अगर मान लो नीचे लेके गया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो, है ना। अगर वॉल्यूम Yes, को sir. नीचे लेके गया तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इस तो ऐसा कोई अलग फॉर्मूला दिखे तो समझ जाओ कैसे डिराइव कर लेना। यस, फिर इसके बाद हम लोग ने थर्मल स्ट्रेस पढ़ा था, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस क्या था अगर याद है तुम्हें, तो सपोज वी हैव अ रॉड, दिस रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन टू वॉल्स। इस रॉड को हम लोग ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया दो वॉल्स के बीच में। ओके, अब इसका टेम्परेचर मान लो सिस्टम का क्या है, T नॉट, लेंथ है L नॉट, और यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ बढ़ेगा क्या रॉड का, है ना। No, sir. वॉल पे लगेगा, लेट नहीं बढ़ना बढ़ेगा। चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल है दोनों साइड में, है ना। वॉल में। लेफ्ट साइड में भी वॉल है, राइट साइड में भी वॉल है, तो ये वॉल के कारण लेंथ नहीं बढ़ेगा, पर बढ़ना तो चाह रहा है, यस और नो। अंदर से Yes, उसका sir. इच्छा है कि नहीं लेंथ Yes, बढ़ना sir. चाहिए। तो वॉल पे Yes, लगेगी। तो चाह रहा है उसका लेंथ बढ़ाने का, वो चाह रहा है कि लेंथ बढ़ जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि एल हो जाए एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, पर कर नहीं पा रहा है, तो इसीलिए वो क्या है, स्ट्रेस में। वो रॉड कैसा है, स्ट्रेस में। इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा। अब थर्मल स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं थोड़ा, किसके बारे में सोचते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, यस, ये देखो, पहले तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन Stress by- स्ट्रेन, है ना। Yes, sir. तो हम लोग लिख सकते हैं थर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा Y इंटू स्ट्रेन, यस और नो, है ना, Yes, है ना। sir. अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो हम लोग लिख सकते हैं L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये क्या है, स्ट्रेन है कि नहीं, है ना। Yes, sir. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विच इज अल्फा डेल्टा टी, मतलब स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेन के जगह पे मैं क्या डालेगा, Yes, sir. स्ट्रेन के जगह पे मैं क्या डालेगा, स्ट्रेन के जगह पे मैं अल्फा डेल्टा टी डालेगा। तो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, y अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट है। Yes, sir. ये स्ट्रेन के जगह पे मैंने क्या डाला, y अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेन स्ट्रेन का वैल्यू अल्फा डेल्टा टी है, मैंने प्रूव किया पहले, यस, बेस्ड ऑन लीनियर एक्सपांशन व्हिच वी डिड इन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। यस, तो वहां से हम लोग ने ये रिजल्ट यूज किया और हम लोग का वैल्यू आ गया। ओके, तो थर्मल स्ट्रेस इज y अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, सबको समझ में आ गया थर्मल स्ट्रेस का। Yes. Yes, sir. Yeah. किसी को भी डाउट है इसमें, No, sir. No, sir. No doubt. No, sir. ओके। यस, तो लेट अस नाउ सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो मैंने पीडीएफ भेजा है तुम्हें, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक का सॉल्व करते हैं। एक मिनट दो ना, ये लिखना है। ये लिख दो पहले, लिख के हो गया तो मेरे को बता दो। हो गया, Sir, 1 minute.
Yes, sir. यस हो गया. यस, तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं हम लोग. लास्ट क्वेश्चन से. तो कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 113 ऑफ टेक्स्ट बुक. पेज 113 निकाला. Yes, sir. Page 113. Okay, so let us start with the last question, which is 13th question. So what is the strain? Original length कितना है? 50 मीटर. Change in length कितना है? 2.5 सेंटीमीटर. है कि नहीं? है ना? तो सिंपल. Change in length upon original length strain है. तो 2.5 into 10 raised to minus 2 upon 50. So this is the answer. Clear है? Yes, sir, clear. इसका आंसर आएगा 5 into 10 raised to minus 4. वेरी वेरी सिंपल. और स्ट्रेन Yes, sir, simple. रेशियो ऑफ लेंथ चेंज अपॉन लेंथ. तो ये भी कैसा होगा? यूनिटलेस. इधर यूनिट कुछ भी मत लिखो, सेंटीमीटर मत लिखो. क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है. तो एक लेंथ अपॉन लेंथ मतलब यूनिटलेस आएगा कि नहीं? है ना? Yes, sir. It's the यूनिटलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर एक मिनट. इस लिख दो पहले. हो गया? Sir, 1 minute. जस्ट 12th क्वेश्चन करते फिर इसके बाद. Sir, done. यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेस. यस और नो? हम लोग Yes, स्ट्रेस sir. in a wire which is, we have to find the stress in a wire which is 50 meter long. तो वायर का लेंथ कितना है? 50 मीटर. एरिया कितना है? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर. है ना? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स कितना है? mg, मतलब 100 g, मतलब 980 न्यूटन. यस और नो? है ना? Yes, sir. sir. g का वैल्यू 9.8 लिया हमने. g का वैल्यू क्या लिया? 9.8. तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या आएगा? सिंपल, फोर्स अपॉन एरिया. है ना? फोर्स कितना है? Yes, sir. 980 न्यूटन अपॉन एरिया कितना है? तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या आएगा? 9.8 into 10 raised to 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज द आंसर. हार्ड था ये? No, sir, easy था. और सही से. लेंथ फालतू का दिया है कंफ्यूज करने के लिए. हो गया? नेक्स्ट करूं? Yes, sir, done. The next question, 11th question. इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को? रबर बैंड हैविंग ओरिजिनल लेंथ 30 सेंटीमीटर. ओरिजिनल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर. स्ट्रेच टू अ लेंथ ऑफ न्यू लेंथ कितना है? 32 सेंटीमीटर. तो चेंज इन लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर. फाइनल माइनस इनिशियल. 2 centimeter. है ना? अब हम लोग को क्या निकालना है? Yes, sir. तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ 2 सेंटीमीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ 30 सेंटीमीटर. तो कितना आएगा? 50. क्लियर है? Yes, sir. यस, तो ये आंसर है 1/50. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 6.667 into 10 raised to minus 2. क्लियर?
Yes, sir. यस। अब 11th के बाद 10th क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग पीछे से जा रहे हैं। लिख दिया तो मेरे को बोल दो, नेक्स्ट करते हैं। सर लिख लिया। यस। 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? अ टेलीफोन वायर ऑफ लेंथ कितना? 125 मीटर। रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर, मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। स्ट्रेच टू अ लेंथ, तो नया लेंथ कितना दिया है? 125.25, मतलब चेंज इन लेंथ कितना है? 0.25, हाँ ना? यस। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, मतलब क्या? L - L0 विच इज 0.25। और फोर्स कितना है? 800 न्यूटन। तो हम लोग को क्या निकालना है? यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L अपॉन L0, है ना? अब फोर्स कितना है? Yes, sir. एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 × 10⁻³ द होल स्क्वायर, है ना? और चेंज इन लेंथ कितना है? 0.25 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है? 125। तो यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1.274 × 10⁻11। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? और यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या आएगा? तो देखो, यंग्स मॉडुलस इज व्हाट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेस का कोई यूनिट है? Yes, sir. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। No, स्ट्रेस का sir. यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का यूनिट क्या है? नो यूनिट, है ना? Unit. तो न्यूटन पर Yes, मीटर sir. स्क्वायर अपॉन नो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट भी क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इसके लिए लिख दो। ये लिख के हो गया तो बोलो नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। Sir, 1 minute. इस लिख के हो गया तो बोलो। यस हो गया। यस सर। इस तो 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है? वी आर गिवन अ कंपोजिट वायर। कंपोजिट वायर बने। ये देखो, कंपोजिट वायर मतलब एक वायर है, मान लो कुछ मटेरियल का, और दूसरा वो वायर 8th और क्वेश्चन है। क्या? सर वो 8 क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है। उसको 9th कर दिया कि नहीं? नहीं किया सर। अच्छा, 9th मिस कर दिया। और स्टील वायर, स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है? 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर स्क्वायर बिकम्स 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, है ना? और फोर्स कितना है? 120 न्यूटन। लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या? डेल्टा डी अपॉन डी नॉट, है ना? तो लैटरल स्ट्रेन कितना है? 1.455। पॉइजन्स रेशियो निकालना है और यंग्स मॉडुलस दिया है ना? तो देखो, पहले तो हम लोग यंग्स Yes. मॉडुलस का यूज करेंगे। यस और नो? सर यंग्स मॉडुलस नहीं दिया है। क्या क्या यंग्स मॉडुलस नहीं दिया है दिया है ना? गिवन यंग स्टिल। तो तुम्हारा पुराना टेक्स्ट बुक रहेगा तो नहीं रहेगा उसमें। सर। वो 8 का है, वो 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है। 8 नहीं है, 9th है मेरे इसमें, तो दिया है मेरे इसमें, दिया है। ठीक है? यस यस सर। यस, ठीक है। तो देखो, मैंने भेजा है पीडीएफ ग्रुप में, तो वहां पे देखो दिया है वो 9th क्वेश्चन। ठीक है? यस। तो देखो, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या आएगा? एफ अपॉन ए वाई। करेक्ट है कि नहीं? है ना? तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट मैंने निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सिग्मा में लगेगा हम लोग को, है ना? Yes, sir. तो इसके लिए निकाला। तो कितना आएगा? एफ अपॉन ए वाई। एफ कितना है? 120 अपॉन एरिया कितना है? 1.2 × 10⁻⁶। यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻11।
क्लियर, सब ऐसा यूनिट में। तो 120 और ये 100 हो जाएगा कि नहीं, ये सॉल्व है ना। यस सर। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट कितना आएगा, 50 इंटू 10 टू डिनोमीटर में क्या आएगा, 11 माइनस 6 कितना आता है, 5 है ना, -5 आ जाएगा न्यूमरेटर में, यस और नो, है ना। नीचे 10⁵ आया यस तो ऊपर 10⁻⁵ होगा। अब सिग्मा पॉइजन रेशियो कितना है, ये डेल्टा डी अपॉन डी नॉट दिया हम लोग को, कितना वैल्यू दिया है 1.455 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, अपॉन डिनोमीटर में कितना है 50 इंटू 10⁻⁵। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके निकालो कितना आता है। इस 9th क्वेश्चन का ये वैल्यू कैलकुलेट करके निकालो। इस कैलकुलेट किया किसी ने, यस 0.0291 आ रहा है। 0.0291 इस पर हम लोग को तो ये कितना दिया है 0.291 दिया है। इसको कुछ तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा यहाँ पे, समझाइए अगर तुमने बराबर कैलकुलेशन किया है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा। क्लियर है। यस इस जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हो सकता है, देखो ये जो स्ट्रेन है ये थोड़ा 1.455 ये ज्यादा लग रहा है मिलीमीटर, ये एक्चुअली कितना होना चाहिए, मिलीमीटर में नहीं होता है। तो 10⁻⁴ 10⁻⁵ ऐसा होता है, जो 10⁻³ है उसके बदले 10⁻⁴ हो जाएगा, तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। ये सॉल्व, वैसे भी स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा दिया था। समझा, ये पॉइसन रेशियो का वैल्यू कितना आया 0.291। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट करूँ अभी 8 जस्ट लिख दो पहले, 8 क्वेश्चन करते हैं। लिख के हो गया तो बोल दो। सर डन। यस, तो 8 क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, वी आर गिवन अ कंपोजिट रॉड। कंपोजिट रॉड मतलब दो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है ना, मैंने बताया तुम्हें। यस सर। एक मटेरियल मान लो कौन सा है टंगस्टन, और दूसरा मान लो काला कलर में दिखाया कौन सा है स्टील, दिख रहा है ये है ना, Yes, sir. ये स्टील है। और ऊपर वाला क्या है, दोनों वायर का लेंथ और एरिया सेम है, तो फालतू में मोटा बनाया। इसका लेंथ L0 है, तो इसका लेंथ भी कितना है नीचे वाले का L0, और एरिया कितना है दोनों का सेम। क्लियर है ना। यस सर। यस सर। थोड़ा मोटा बना दिया मैं गलती से, पुरानी क्वेश्चन इसलिए पतला बना दिया। अभी ठीक है, यस समझाइए। तो ये इसका जंक्शन है। Both the wires if the composite suspended to a rigid rod,
यहाँ पे रिजिड रॉड पे मैंने सब फोर्स लगाया, क्या लगाया, कितना फोर्स लोड हाँ है ना, Yes. Yes, sir. कितना है ये फोर्स का वैल्यू कितना है, कुछ तो होगा। और एक्सटेंशन कितना दिया है क्वेश्चन में, एक्सटेंशन दोनों के कारण होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हाँ है ना, Yes, sir. टंगस्टन का प्लस स्टील का, 3.25 मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया। अब दोनों का अलग अलग से निकालना है, तो ये y ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन को W लिखेंगे और स्टील को S लिखेंगे। टंगस्टन का सिंबल W है, पीरियड मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था, यस और नो, Yes, sir. यस क्या वाला लाइन था, लाफ्टा वरना रेखा ओसामा इधर ही पिटेंगे और हंसेंगे, और वरना मतलब क्या, टंगस्टन, Something. याद है, Yes. Yes, sir. ये स्टील का कितना दिया है, क्लियर है, टेस्ट तो दोनों का हम लोग को निकालना है। तो देखो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या, F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L नॉट, ऐसा है कि नहीं, है ना, हम लोग को Yes. यंग्स मॉडुलस और डेल्टा L में रिलेशन चाहिए कि नहीं, एज पर द गिवन क्वेश्चन, है ना, है ना, तो यंग्स मॉडुलस वी सी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, है ना, यस। Yes, sir. हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोल दो, 1-2 से कंफ्यूजन होगा तो टंगस्टन और स्टील बोल दो, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं y ऑफ स्टील या y ऑफ स्टील अपॉन y ऑफ टंगस्टन इज डेल्टा L ऑफ टंगस्टन अपॉन डेल्टा L ऑफ स्टील, बराबर है कि नहीं, Yes, है sir. ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 4.1, एकदम वैल्यू डाल दिया इसका, और 10⁻11 तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, है ना, Yes, sir. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन अच्छी बनेगी तो नहीं, चलो बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, 3.25 into 10⁻³ बराबर है कि नहीं, तो इक्वेशन 1 ले लो इसको, है ना, इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2। अब ऑब्वियसली डेल्टा L W आ जाएगा, डेल्टा L S आ जाएगा, है ना, दो इक्वेशन दो अननोन, तो कोई बड़ा बात है क्या, है ना, No, sir. नो, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, तो क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2 वी विल गेट द आंसर एज व्हाट, टंगस्टन का कितना आएगा और स्टील का कितना आएगा, क्लियर, Yes, sir. यस, तो ये लिख दो। कोई डाउट आया किसी को, No, sir. No doubt. ये सब 7th क्वेश्चन सेम है, तो तुम कर लोगे होमवर्क में, 7th क्वेश्चन हम लोग ने जैसा किया वैसा ही है। Yes, sir. इसको 6th क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, 7th क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, तो मैं स्किप कर रहा है अभी, अभी तुम्हें आ गया रहेगा ये इजीली, तो इतना सारा क्वेश्चन किया इसका। जैसे ये हो गया तो मेरे को बोलो नेक्स्ट करते हैं। Yes, sir. Done. 1 minute, sir. हो गया अभी, हाँ सर। तो 6th क्वेश्चन, 7th इज सेम तो होमवर्क में दे रहा है, तो 6th क्वेश्चन, वॉल्यूम कितना दिया है, 0.31 मीटर क्यूब, व्हाट इज द गिवन वॉल्यूम, 0.31 मीटर क्यूब। एक सॉलिड मेटल स्फीयर को हम लोग ने कहाँ ड्रॉप किया, ओशन में, ओशन में डाल दिया, ओशन में पानी होगा, है ना, तो वहां पे कुछ प्रेशर है, Yes, sir. प्रेशर P, तो कितना वैल्यू है, 2 × 10⁻7। चेंज इन वॉल्यूम निकालना, बल्क मॉडुलस दिया, इट्स तो वेरी वेरी इजी, है ना,
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यस और नो? यस सर। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन डेल्टा V बाय V नॉट, यस और नो? तो इससे यस सर। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P अपॉन B P V नॉट बाय V। V नॉट कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे? P के बाजू में सर। ऊपर आएगा, हाँ है ना? यस और नो? हाँ सर। तो P का वैल्यू कितना है? वॉल्यूम 0.3, ओरिजिनल वॉल्यूम। अपॉन बल्क मॉडुलस कितना है? तो 7th वाला नहीं किया ना? होमवर्क दिया, बोला ना, वो सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग पहले किया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसलिए नहीं किया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, कितना आएगा? तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 जितना आएगा। इसका अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4। क्लियर है? यस सर, क्लियर। Yes, sir. जैसा आंसर दिया वैसा आएगा आंसर। क्लियर? यस सर, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करूं, लिखो पहले। सर एक मिनट, Yes, sir. Okay. यस, तो सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ नहीं सॉरी फिफ्थ, उल्टा कर रहे हैं ना हम। फिफ्थ, तो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। वर्क डन मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्ट्रेन एनर्जी, यस और नो? वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, डेरिवेशन बताया मैंने। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ कितना है? 2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 0.0225 है ना? अब मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10⁻⁻6। यस सर। मिलीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 10⁻³ द होल स्क्वायर, मतलब 10⁻6 द होल स्क्वायर। क्लियर है? 10⁻6। यस सर। और फोर्स कितना दिया है? 100। यंग्स मॉडुलस कितना दिया है? 2 × 10⁻11। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, स्ट्रेन एनर्जी, हाँ है ना? क्या यस फॉर्मूला? सर। हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, यस और नो? और Yes, दूसरा हम लोग sir. क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो कौन सा वाला अच्छा रहेगा यहाँ पे? स्ट्रेस तो निकल जाएगा, स्ट्रेन निकालना थोड़ा मुश्किल है। जब वो स्ट्रेस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें तो आ जाएगा सर। हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय यंग्स मॉड्यूलस। हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस इंटू वॉल्यूम। हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोग, बराबर। तो ये यूज करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो स्ट्रेस कितना दिया है? फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, विच इज फोर्स अपॉन एरिया। तो 100 अपॉन 0.0225 इंटू 10⁻⁻6। तो स्ट्रेस का कितना वैल्यू आता है ये पहले कैलकुलेट करो, फिर वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। तो 10⁸ अपॉन 0.0225 हो जाएगा कि नहीं? है ना? है ना? यस। इसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? 2, बराबर है कि नहीं? 2। यस सर, 0.0। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कितना है? 2 × 10⁻²11। 2 डिनोमिनेटर का एज इट इज लिखा मैंने ये, और यंग्स मॉडुलस का 2 × 10⁻11 लिखा। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ये 2 डिनोमिनेटर का और ये यंग्स मॉडुलस का। क्लियर? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? है ना? यस सर। तो कितना आंसर आएगा? 2.2220। सो दिस द आंसर। क्लियर? यस सर, क्लियर।
इफ आंसर हार्ड लगा ये क्वेश्चन कैसा किया वो? नो सर इजी था। इसको लिख गई। तो क्या सर 1 हो गया? यस सर डन। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिया है? अ वायर गेट स्ट्रेच्ड बाय 4 मिलीमीटर, है ना? मतलब 4 into 10⁻⁻⁻, Yes. ड्यू टू अ सर्टेन लोड। तो लोड कितना बोला? F. If the same load is applied to wire of same material is half the length, तो चेंज इन लेंथ निकालना, समझाए? तो डेल्टा L1 दिया है, ये किसके लिए? फर्स्ट केस ओरिजिनल लेंथ L0 के लिए, हाँ है ना? है ना? यस सर। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ L/2 है, यस और नो? यस सर। और यहाँ पे रेडियस अगर R0 है तो यहाँ पे रेडियस डबल है, यस और नो? यस सर। सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉडुलस सेम होगा कि नहीं? हाँ है ना? सेम मटेरियल तो यंग्स Yes. मॉडुलस सेम होगा, हाँ है ना? यस सर। तो बस यंग्स मॉडुलस को इक्वेट करना पड़ेगा। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? y is equal to f by a upon delta L1 upon L0। L0 पहले L0 ले लेते, चलो ठीक है, is equal to f by a upon delta L2 upon L0। अब यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे एरिया A1 है, और यहाँ पे L0 है, यहाँ पे L0 है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। L0/2 मतलब 0.5 L0, करेक्ट है? यस सर। यस, ये तो डाउट नहीं है किसी को। फोर्स सेम है, अब एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो एरिया को फोर्स कैंसिल किया दोनों साइड में, फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस सर। 1/पाई आर स्क्वायर, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर इज R0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/पाई R2 4 times R0 स्क्वायर अपॉन डेल्टा L1। डेल्टा L1 का वैल्यू कितना है? 4 4 into 10⁻⁻⁻। अपॉन ओरिजिनल लेंथ L0 मान ली, और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा L2 निकालना है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ 0.5। क्लियर है? L0। Yes, sir. यस सर। अभी और क्या कैंसिल होगा? L0 पाई, करेक्ट है? Yes, sir. तो therefore Yes, हमारा sir. इक्वेशन क्या बनेगा? फोर into 10⁻³ upon R0 square is equals to 4 R0 square upon delta L2 upon 0.5 L0। बराबर है कि नहीं? ऐसा है ना? यस सर। अब R0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो आ गया कि नहीं? तो वो 0.5 भी तो है ना? क्या 0.5 0.5 कहाँ आएगा फिर? तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर ना? तो 8 आ जाएगा। हाँ सर। इधर क्या आएगा? सर ऊपर सिर्फ 8 हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। 8 हो जाएगा ना? है ना? नहीं सर, तो 2 होगा। तो ऊपर सिर्फ 1 रहेगा सर, ऊपर 1/3 सब आएगा। 1/8 into delta L2 ऐसा 8 होगा। या 2 दोनों में से एक आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कैसे? देखो ये 0.5 ऊपर गया तो 0.5 न्यूमरेटर में सिर्फ 1 आएगा। 0.5 न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, न्यूमरेटर में 1 रहेगा।
इस डेल्टा L2 कितना आएगा 0.5 into 10⁻³ मतलब 0.5 मिलीमीटर, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, 0.5 millimeter. So this is our final answer to this question.